Hello everyone, I'm back with a new video again, and I hope you're all happy and healthy. I hope this lockdown has been treating you well, and more importantly, you have been treating yourself well. You know, we are going through turbulent times, sure, but I think we always have a choice. Either we let the situations make us, or we let the situations break us. I hope you make the wise choice and work on your mind, heart, soul and health. Try to have fun more often, like I am having fun while making this video. And let's begin. So in this video I will be covering about the MTP. MTP stands for Medical Termination of Pregnancy. MTP क्यों ज़रूरी है? MTP की significance medical legally काफ़ी ज़्यादा है. And I want to address this that being a health professional, you should have a thorough knowledge of the medical legal aspect of medicine and what you do. Because patient को बचाने से पहले you need to save your ass first. अगर आप एक एनालॉजी लें कि अगर आप एयरप्लेन में हैं एंड एनी क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरता है, you need to put your mask first before helping the other person. Because you are of no help to that person if you are already dead. Similarly, you are of no help to your patient if you are already dead or in jail. So you need to protect yourself first, whether it be physically. किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, आपको पहले खुद को बचाना है. यूज प्रोटेक्टिव गियर्स, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए. अभी करंटली कोविड चल रहा है, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. योर प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन द पेशेंट कम्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेशेंट को नहीं करना है, पेशेंट की देखभाल भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप खुद भी तो ठीक होने चाहिए पहले उसके लिए. सेकेंडली, मेडिकल लीगली आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए. बिकॉज हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो नंबर ऑफ योर पेशेंट कैन सू यू एनी टाइम. Basically, number of lawsuits in the recent years have significantly increased against doctors. So you need to be on the safer side to practice medicine. MTP इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. MTP के बारे में हम ओवरव्यू ले लेंगे मोटा मोटा. MTP is just an kind of artificial abortion, legal abortion. Abortion क्या होता है? Abortion is just expulsion of fetus before term, that is 37 weeks of pregnancy. MTP ओरिजिनली 1971 में आया था. अभी करेंटली 2020 में इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं. सो इट इज स्टिल अ बिल येट. इट इज MTP अमेंडमेंट बिल 2020. बिकॉज अभी ये केवल लोकसभा में पास हुआ है. एक लॉ बनने के लिए एक बिल को पहले लोकसभा में उठाते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको ठीक करा जाता है, फिर उस पर वोटिंग होती है. अगर वो मेजोरिटी लेके पास कर जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है. लोकसभा में अभी करेंटली बीजेपी है इन अ क्लियर मेजोरिटी, तो इट इज नो प्रॉब्लम फॉर देम टू पास एनी बिल दे वांट. फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होगा, डिस्कशन होगी, वोटिंग होगा. उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा एंड बूम यू हैव अ लॉ. तो करेंटली अभी वो बिल है. इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एक ओवरव्यू लेंगे MTP का. तो MTP, what does MTP tell you? MTP tell you that who can perform this MTP, where can it be performed, and when can it be performed. What are the indications? So coming over to the who can perform this MTP. Any registered medical practitioner, that is a doctor who is also a postgraduate or diploma in obs and gynae, or an RMP who has assisted in at least 25 cases of MTP, or an RMP who has at least 6 months of experience as a house surgeon in the obs and gynae department of a authorized institution which can perform MTP. अब where can MTP perform? MTP आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो सकता है, एंड इफ नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव टू परफॉर्म MTP तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, ऑथराइजेशन लेना पड़ता है. मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हेन कैन एन MTP कैन बी परफॉर्म. द इंडिकेशंस ऑफ MTP, तो इसके इंडिकेशंस होते हैं या तो थेरेपेटिक इंडिकेशंस होते हैं इसके, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी और कंटिन्यू होती है तो इट कैन एंडेंजर द लाइफ ऑफ द मदर and can have detrimental effects on
फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एमटीपी बेसिकली मदर फोकस्ड है ज़्यादा, फीटस का उसमें इतना कोई ख्याल नहीं रखा गया है, इट इज़ बेसिकली मदर फोकस्ड। और दूसरे कॉजेज क्या हो सकते हैं, यूजेनिक कॉजेज हो सकते हैं कि जो चाइल्ड जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें कोई ग्रॉस जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ है विच इज़ इनकम्पैटिबल विद लाइफ, और अगर वो पैदा होता भी है तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल नॉट बी वेरी गुड। मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मेलिटी होती है उसको, जैसे कि जर्मन मीजल्स हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे के ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, तो अगर उस प्रोसेस के दौरान अगर कोई डिजीज़ या कुछ हो जाता है तो दैट हैज़ अ वेरी डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द फीटस। मान लीजिए जर्मन मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या फिर कोई ड्रग का रिएक्शन हो गया, थैलिडोमाइड आपने सुना होगा, थैलिडोमाइड डिजास्टर, उसमें फोकोमिलिया हो जाता है बच्चों को, सील लाइक लिम्स आते हैं। निक व्यूजिचिक इफ यू हैव हर्ड अबाउट हिम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फोकोमिलिया। या फिर रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है फीटस को, एक्सरेज में हो गया है, या फिर उसके पेरेंट्स इनसेन, दे आर नॉट मेंटली साउंड। या फिर दूसरे कॉज आता है ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज, जैसे कि आपका जो पेशेंट है, द प्रेगनेंसी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ कैजुअल इंटरकोर्स, द प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ अ रेप। तो ऑब्वियसली बात है कि जो फीमेल है वो शी विल नॉट वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, तो उन केसेस में हम एमटीपी कर सकते हैं। सोशली रीजंस क्या होते हैं कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के कारण हो रहा है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे थे मदर और फादर दोनों, वो उनका कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया है, इस कारण प्रेगनेंसी हुई है, तो दैट कैन बी अबॉर्टेड। या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, अगर बर्थ होता है तो वो फेवरेबल नहीं है फीमेल की हेल्थ के लिए। ठीक है, अब नाउ द मेन टॉपिक, क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहली बात करते हैं कि अपर लिमिट ऑफ टर्मिनेशन की। ओरिजिनली जो अपर लिमिट ऑफ टर्मिनेशन थी दैट वाज 20 वीक्स कि मतलब अगर आप 20 वीक्स यानी 5 महीने की अगर आपको एमटीपी करवाना है तो दी मैक्सिमम लिमिट वाज 20 वीक्स। उसके बाद आप लीगली एमटीपी नहीं करवा सकते, अगर अपने आप होता है तो बात अलग है अबॉर्शन, लेकिन आप एज अ डॉक्टर आप इंटरवीन नहीं करोगे। तो अब इसको बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया है, लेकिन किसके लिए, केवल रेप विक्टिम्स के लिए या फिर इंसेस्ट सर्वाइवर्स के लिए, या फिर अगर फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटीज आती है, केवल उन केसेस में। बाकी कॉजेज के लिए नहीं है ये कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर और इंसैनिटी वगैरह इन सब के लिए नहीं है, जो इसमें भी बताए गए हैं केवल उनके लिए है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें कि देयर इज नो अपर लिमिट फॉर सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज। अब सब्सटैंशियल का मतलब सिग्निफिकेंट फीटल एबनॉर्मेलिटीज। अब कौन डिसाइड करेगा कि ये सब्सटैंशियल है कि नहीं है, तो फॉर दैट दे हैव प्रपोज्ड अ मेडिकल बोर्ड विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स, अ पीडियाट्रिशियन, अ रेडियोलॉजिस्ट और अ सोनोलॉजिस्ट एंड अ गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके बारे में अभी कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, जो आगे जैसे जैसे होता है बाद में वो एक्ट में इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी करेंटली नहीं है। तो इफ दे टेल दैट ठीक है देयर इज अ फीटल सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी, तो 24 वीक्स ही कोई ऐसी लिमिट नहीं है, अगर उनको बाद में नहीं मिलता है तो दे कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि ओरिजिनली जो लॉ था उसमें कंडीशंस ये थी कि 12 हफ्ते तक आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए एमटीपी कैरी आउट करने के लिए, और 12 से 20 हफ्ते के बीच में आपको 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए। Now the scenario has changed. Now it is that up till 20 weeks you need only doctor opinion of one doctor, and from 20 to 24 weeks you need opinion of 2 doctors. और फिर बाद में कोई उन दोनों में से कोई भी डॉक्टर एमटीपी परफॉर्म कर सकता है, हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि अगर प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसमें अब मैंने भी बताया था अपर लिमिट 20 वीक्स ही है, देयर हैज बीन नो चेंज फॉर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बट इसमें क्या था, पहले एक क्लॉज था कि मैरिड फीमेल में अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर होता है तब एमटीपी करवा सकते हो, लेकिन अब उन्होंने वो शब्द मैरिड हटा दिया है। तो अगर कोई भी किसी नॉन मैरिड फीमेल में भी अगर प्रेगनेंसी होती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन किसी भी साइड से, आइदर फ्रॉम मेल साइड और फीमेल साइड से, कि अगर कॉन्डम में रप्चर हो गया या फिर
उनके OCPs काम नहीं कर रहे, वैसे तो इट इज़ वेरी रेयर, 1% चांस होता है कि OCPs काम नहीं करते, लेकिन फिर भी एनीथिंग कैन, अगर उसके कारण प्रेगनेंसी होती है तो दे कैन टर्मिनेट अप टिल 20 वीक्स। तो उन्होंने मैरिड का जो एक क्लॉज था वो हटा दिया है। 5वां पॉइंट क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। ये पहले भी था और ये इन जनरल हर चीज़ में होना भी चाहिए। आपको अपने पेशेंट की आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी चाहिए, और आप वो अभी इसमें कैसे आप रख सकते हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ बाय दैट यू गिव अ रेफरेंस नंबर टू द पेशेंट। जैसे कि अगर पेशेंट का कुछ नाम है, उसके आपने उसको एक रेफरेंस नंबर दे दिया, आपने अपने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में वो लिख लिया कि ठीक है इस पेशेंट का नाम है, उसके आगे उसका रेफरेंस नंबर, एंड दोज रिकॉर्ड्स वुड नॉट बी अवेलेबल टू द पब्लिक एज सच ऑफ कोर्स। तो आपने लिख लिया, बाकी उसकी जो फाइल्स होंगी जो हॉस्पिटल में होंगी उस पर उसके नाम की जगह वो नंबर लिखा होगा। तो इफ एनीबडी लाइक आई एम गोइंग एज अ थर्ड पर्सन और मैंने उनकी फाइल देखी, तो आई वुड नॉट गेट टू नो दैट हु इज एक्चुअली द पेशेंट। आई विल जस्ट रीड अ नंबर एंड आई कैन नॉट मेक एनीथिंग आउट, राइट? So in this way we can maintain confidentiality of the patient and it is of eminent importance. केवल MTB भी नहीं, बाकी procedures में भी, whether it be surgery or any kind of thing. So I think this is the end of the video, and stay happy, stay healthy, have fun.